Yeah. So I think in last lecture we already started some examples on this probability. Okay. So what is probability? It is number of favorable outcomes or number of elements in a event A upon total number of outcomes. Okay. So this is the definition of probability. And then these are some important theorems in probability, that is the probability of A union B. In general, it is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Okay. And for three sets A, B and C, the probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus their intersection, that is probability of A intersection B, B intersection C, A intersection C, and plus probability of A intersection B intersection C. यहाँ पे प्लस साइन है ना, बस आप प्रॉपर देखो. Next part which I have not taken in the last session, which is conditional probability. Okay, so what is the conditional probability? It is generally denoted by probability of A by B. Okay, so where A and B both are the events. Okay, and how you write the conditional probability? Like this, A by B. Now what is meaning of this? What is meaning of this? Can anyone tell me? What is meaning of this? The formula is like this. It is probability of A intersection B upon probability of B. But can anyone tell me what is the meaning of this A by B conditional probability? Under this conditional probability, can you try? ये था आपको अपने एप्टीट्यूड में भी कहीं पे देखा होगा. Yes. What is probability of A by B? Yes. Anyone? पता आपको ये? Just tell me yes or no. No, sir. Okay. The event that depends on another. Yes, yes. Okay. So in this case, this event B is depend on A. In this case, इसका मीनिंग क्या होता है? Event A is depend on B. Okay, रिवर्स होता है. Event A is depend on. इसको रेडी कैसे करने पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ. Okay. So probability of A by B. हाँ. Probability of A by B is B means what? It is actually a probability of A. Okay, it is actually a probability of A when event B is already occurred. Okay, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? आपका इवेंट B कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आपको A की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. ओके, देन दैट पार्ट इज रिटन इन दिस वे, A by B. Okay, so it is actually a probability of A. It is actually a probability of A when event B is already occurred. And ये नोटेशन तभी यूज होता है जब ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट है. मतलब जो नेक्स्ट इवेंट होगा, अभी आपका पहला B इवेंट कंप्लीट हो चुका है ना, आपका नेक्स्ट इवेंट क्या है? A इवेंट है. तो इफ दिस टू इवेंट आर डिपेंडेंट, देन वी जनरली यूज दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Okay, so how we read this part? This is actually a probability of A when event B is already occurred, and it is equal to probability of A intersection B upon probability of B. So let me take one example. I think it is already there. एक simple example से मैं आपको explain करता हूँ. Okay, so consider a box. Okay, consider a box which contain 5 balls. Okay, in which 2 are blue, है ना? 2 balls are blue and 3 balls are red. Okay, what is the experiment? We have to draw two blue balls without replacement. This is our experiment. Okay, so first step. Okay, so आपको at then we need to draw 2 balls without replacement. So when we draw a first blue ball, so what is the probability of getting that first blue ball? What is its probability? इस बॉक्स में से ब्लू बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यस, 2 by 5 because there are only 2 blue balls and total balls are 5, so probability is 2 by 5. Okay, ये फर्स्ट केस में, ये ट्रिवियल है, ये आपको समझ में आएगा. So this is our event A.
नाउ वी हैव टू गो फॉर इवेंट बी. इवेंट बी क्या है? ए इवेंट होने के बाद, मतलब फर्स्ट ब्लू बॉल ड्रॉ करने के बाद आपको एक और बार ब्लू बॉल ड्रॉ करना है, क्योंकि एट द एंड वी नीड टू ड्रॉ 2 ब्लू बॉल. तो एक और बार आपको ये ब्लू बॉल ड्रॉ करना है, बट उस टाइम पे ये जो पहला बॉल था ये आपने बाहर ही रखा है. ओके, we haven't replaced it in that box again, so without replacement, so keep it outside this blue ball, and now draw one more blue ball from the remaining sample. Okay, तो अभी आप ऑलरेडी आपने एक ब्लू बॉल ड्रॉ किया था. so now in this sample there are only 4 balls. So from these 4 balls we have to draw blue ball. Okay, so what is its probability? Now there is only one blue ball, so its probability is 1 by 4. Okay, so its probability is 1 by 4. Okay, so here you can see this second event B is totally depend on A. समझ में आ रहा है? Here in this case this second event B is totally depend on A. क्यों depend हो रहा है? क्योंकि sample space change हो रहा है ना. Initially we have 5 balls in a box, in next time we have only 4 ball in a box, so it is dependent event. Is this clear? Is this clear now? Yes, sir. And so at then what is the total probability? Probability of A multiplied by probability of B. So probability of A is 2 by 5, and next is probability of drawing one more blue ball without replacement is 1 by 4. So your final answer is 1 by 10. So this is the probability. Okay, and what is your experiment? तो आपने क्या किया था? A is drawing a first blue ball. A आपका क्या था? Drawing a first blue ball. And B event क्या था? Drawing a second blue ball. Okay, so आपकी so how we denote this part mathematically? This is nothing but probability of A intersection B. आपको दोनों को परफॉर्म करना है ना? दोनों को परफॉर्म करना है ना टुगेदर. And intersection means and. So A and B. है ना? So A and B. So probability of A and B means drawing first blue ball, after that drawing another blue ball. Okay, यहाँ पे एक और कंडीशन, मेरे पास कंडीशन कौन सी ऐड की है? विदाउट रिप्लेसमेंट. So it is equal to probability of A. Okay, means drawing a first blue ball. Next is drawing a second blue ball when event A is already occurred. ठीक है? So this is the, so from that what is the probability of B by A is equal to probability of A intersection B upon probability of A. इसका रिवर्स होता है. जिसके आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसका अपोजिट पार्ट नीचे आता है. ओके, इज दिस क्लियर नाउ? डेफिनेशन अभी समझ में आ रही है? एग्जांपल से डायरेक्टली क्या मीनिंग होता है B by A का? प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A में आप B की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, बट by A का मीनिंग क्या होता है? ये इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका होता है वहां पे. ओके, सो दिस इवेंट इज ऑलरेडी ऑकर्ड देयर. Okay, and after that now we are going to perform this second event, that is event B. Okay, is this clear now? Yes? Yes, sir. Okay. आपको अभी इतने ट्रिवियल क्वेश्चन नहीं है, उस डायरेक्टली उस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है सिलेबस में. ओके, ये हो चुका है ना लास्ट लेक्चर में? प्लीज कंफर्म वंस अगेन. Yes, sir. ओके, या सो विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक ये भी हमने लिया था, ये आपको मैंने स्किप करने के लिए बोला. नो नीड टू गो इन डिटेल अबाउट दिस क्वेश्चन. या ओके, सो लेट मी टेक दिस ना. ओके, ये ले लेता हूं मैं. अभी जो फॉर्मूला लिया था उस पर भी कुछ क्वेश्चन है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट A कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इज 2 by 3. So P of A is given, that is probability that A solve the problem is given, which is 2 by 3. Next, B can solve, its probability is 3 by 4. So probability that B can solve the problem is 3 by 4. If both attempt the problem, दोनों को ट्राई करना है, then the probability that problem gets solved, probability that problem get solved. Okay, आपको at then problem solve चाहिए. ठीक है, A करे B करे that doesn't matter. आपको at then problem क्या चाहिए? solve चाहिए. That is the question. Okay, तो इसको मैं हैंडल कैसे कर रहा हूं आप देखो. Okay, इसका मैं नेगेशन पार्ट यूज करने वाला हूं. कैसे? आप पहले आप क्या करो, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. मतलब दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. ओके, नॉट पॉसिबल बाय A also, not possible by B also. Can you tell me mathematically how we write it? What is the probability of a problem not get solved by A and B?
ए से भी नहीं हो रहा है और बी से भी नहीं हो रहा है, और भी नहीं बोल सकता आप, एंड ही बोलना होगा, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी कर लेता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. हाँ, एट देन प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए तो ए करे बी करे या दोनों मिलकर करे, दैट डजंट मैटर. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल नॉट गेट सॉल्व्ड बाय ए एंड बी? बोलो. या नन. 1 minus the intersection of A and हाँ, so A complement means what? Problem is not solved by A. Probability that problem is not solved by A. B complement means what? Not solved by B. Intersection का meaning क्या हो गया? Not solved by A and B. Okay, so probability of A intersection, A complement intersection B complement is nothing but the probability that problem will not get solved by A and B. Okay, तो not solved की मैं probability calculate करने वाला हूँ. Okay, so this is the probability that problem will not get solved by A and B. तो इसके में पहले ये solve करने वाला हूँ मैं. So what is this value? पहले मुझे ये बोलो, P of A की probability 2/3 है, तो P of A complement की probability क्या आएगी? 1 by 1 by 3. minus, हाँ, 1 minus 2/3, that is 1/3. Very good. And what is probability of B complement? B की probability 3/4 है, तो B complement की क्या 1 by आएगी? 4. 1 minus 3/4. Very good, which is 1/4. So probability of A complement is 1/3 and B complement is 1/4. And आपको पता है ये दोनों independent है ना, मतलब not solved by A is not depend by not solved by B. Both are independent. तो intersection आपका convert हो जाएगा product में. ठीक है. So probability that problem will not get solved by both A and B is equal to probability of A complement into probability of B complement, which is equal to 1/3 into what? 1/4. So what is this value? 1/12. तो ये क्या है? What is this? What is this 1/12? 1/12 is what? Probability that problem will not get solved. But आपको solve की चाहिए, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 11/12. हाँ, तो ये नॉट सॉल्व की आपने कैलकुलेट की, तो सॉल्व की क्या होगी? इसका निगेशन. सो 1 minus 1/12 दैट इज 11/12. डन. वही मैंने करके दिया है नीचे, बस एक ही टाइम पे लिखा है, ये 1 ही है. इज दिस क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है? ये 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स का तो छोड़ दो, 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में. ओके, या इज दिस क्लियर नाउ? क्वेश्चन नंबर 11. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next is a throw is made with 2 dice, so that 36 elements is there in that sample space. A probability that getting score is a perfect square. What is meant by perfect square? Perfect square means what? Huh? Whose square root is real? Okay. So can you tell me some perfect square? Tell me some examples of perfect square. 1, 4, 9. Huh? So 2 square, 3 square, 4 square, then 5 square, 6 square, 7 square. These are all the perfect square. Okay? हाँ, तो अभी आप अगर आप, हाँ, आपको पता है सम आपकी कैसे वैरी हो रही है? 2 से लेकर, बोलो, 2 से लेकर 12 तक. योर सम विल बी वैरी फ्रॉम 2 to 12. तो इनमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं? कैन यू टेल मी सेपरेटली? जस्ट टेल मी द परफेक्ट स्क्वायर इन बिटवीन दिस सम. 4. नेक्स्ट 9. 9. नेक्स्ट 1. Sorry. 1 नहीं आ सकता. हाँ, 1, 2 इन बिटवीन 2 and 12. हाँ, आई थिंक डन ना? Yes. These are the only 2 perfect square in this range. So just find the number of elements whose sum is 4 and 9. This is the question actually. Simple language में. Okay, just find the number of elements whose sum is 4 and 9. तो 4 sum के कितने elements है? 3 1 1 3 2 2. I think done. है ना? 3 elements. और 9 के कितने elements है? 3 6 6 3 5 4 4 3. Done.
So total elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 upon 36. This is your answer. Clear हो गया question? Yes? Yes, sir. हाँ. So see, in every question idea is different. That's why ये topic मैंने लास्ट में रखा था. तो जितने मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना उतने ही प्रिपेयर करने आपको एग्जाम में. So डोंट वरी कि आपको ज़्यादा कुछ इसमें से एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना. जितना मैंने लिया है उस रिलेटेड ही प्रिपेयर करो. मैं बस वैल्यू चेंज करके आपको क्वेश्चन दूंगा, बट लॉजिक वही आपको यूज करना है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो स्टिक टू दैट ओनली. यस, नाउ 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Okay, the probability that both cards are spade is. पहले मुझे ये बोलो 52 कार्ड्स में कितने स्पेड आते हैं? 13. 13. ओके, ये कार्ड्स का मैंने ऊपर एग्जांपल दे दिया. डायमंड 13. ओके, सो वो एक एग्जांपल मैंने ऊपर दे दिया आपको. सो व्हेन यू ड्रॉ दैट फर्स्ट फर्स्ट स्पेड, ओके, फ्रॉम दिस 52 कार्ड्स, so its probability is 13 upon 52. ओके, हाँ. जब आप नेक्स्ट टाइम पे जाते हो, यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है ना रिप्लेस करके. ओके, तो ड्रॉ ही करना है. अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है. They need to probability that both the cards are spade. Okay, तो यहाँ पे शायद विदाउट रिप्लेसमेंट से उन्होंने ले लिया ऑप्शन. It look like that, but if it is mentioned in the question, then it become more easy. So don't worry, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, so I will write in a proper way. Okay, मैं ये कंफ्यूजन अवॉइड कर दूंगा. रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, I will clear that part in question itself. Okay. सो आपको एट देन क्या है, 52 कार्ड्स है. 52 कार्ड्स में से 2 स्पेड आपको ड्रॉ करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो व्हेन यू ड्रॉ फर्स्ट स्पेड फ्रॉम दिस 52 कार्ड, इस प्रोबेबिलिटी इज 13 अपॉन 52. एंड व्हेन यू गो फॉर अ नेक्स्ट ड्रॉ जिसमें आपको एक और बार स्पेड ड्रॉ करना है, सो इन दैट एट दैट टाइम वी हैव ओनली 51 कार्ड्स, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक स्पेड ड्रॉ करके रखा है. एंड वी हैव ओनली 12 स्पेड, so its probability is 12 upon 51. Okay, समझ में आ रहा है? So first ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी, सेकंड ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी, दोनों को आपको एक टाइम पे ही करना है. या दिस इज योर एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कार्ड आपको ड्रॉ करना है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंड में ये प्रोडक्ट में जाएगा. करेक्ट? सो 13 by 52 multiplied by 12 by 51. So your final answer is 1 upon 17. Okay, ये सिमिलर टू लास्ट ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे प्रीवियसली. ठीक है? Yes. Now these are the simple examples. A and B are 2 events. Probability of A is given, B is given. A union B की कैलकुलेट करनी है. A union B की भी given है, B by A की कैलकुलेट करनी है. So what is the formula of probability of B by A? Their intersection upon probability of A. ठीक है? So intersection का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्योंकि आपके पास यूनियन का फॉर्मूला है, तो दोनों का होगा फिर. It is equal to probability of A plus probability of B minus their intersection. ओके, ये फॉर्मूला आपको मैंने दिया है. यहाँ से आप इंटरसेक्शन का कैलकुलेट कर सकते हो. सो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस देयर यूनियन. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड कंप्लीट द क्वेश्चन. इट्स आंसर इज 0.4. ओके, नेक्स्ट इज, हाँ क्या दिया है, इन अ क्लास 40% स्टूडेंट्स रीड स्टैटिस्टिक्स. So probability that student will read the statistic is 40 upon 100, that is 0.4. Next is 50% read both statistics and mathematics. So probability that student will read both statistics and mathematics is 15%. So it is 15 upon 100, that is 0.15. One student, sorry ये रहेगा बीच में, 25% read the mathematics. So probability that 25% will read the mathematics is 25 upon 100, that is 0.25. Now one student is selected at random. Okay, the probability that he read statistics, आपको कैलकुलेट किसकी करनी है at the end? Probability of statistics if it is known that he read mathematics. Okay, if it is known that he already read the mathematics. Okay, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रीडिंग द स्टैटिस्टिक्स. ओके, इफ इट इज नोन दैट ही ऑलरेडी रीड द मैथमेटिक्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ S by M.
प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय M. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस थ्योरम के ऊपर. सो इट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ M. इंटरसेक्शन इज गिवन है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ M इज आल्सो गिवन. सो योर आंसर इज 0.6. यस. Sir, हाँ. can you please explain this again? Okay. Let me take on another page. आप ऐसे क्वेश्चन बोलो, मैं साइड में लेके एक्सप्लेन करता हूँ. Just a minute, let me just adjust the page. Okay. Now see here. क्या क्वेश्चन है? In a class 40% read statistics. Okay. So what is given? Probability of student read statistics. It is equal to what? 40%. So 40 by 100, that is 0.4. Okay. Next, 25% read mathematics. Okay. So let denote this part by probability of S. Next is probability of mathematics. Okay. So read mathematics is 25%. That is 25 upon 100, which is equal to 25. नेक्स्ट क्या दिया है? 15% read both statistics and mathematics. So both statistics and mathematics means their intersection. Clear? Is this clear? And है ना, तो and मतलब intersection ही आएगा. So read both stat and maths. So it is equal to 15%. So 15 by 100, which is equal to 0.15. I think यहाँ तक समझ में आ रहा है. Correct है? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड स्टैटिस्टिक. यही पे क्वेश्चन है एक्चुअली. तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड स्टैटिस्टिक्स. ओके, इफ इट इज नोन दैट ही रेड द मैथमेटिक्स. इफ इट इज नोन दैट ही रेड द मैथमेटिक्स. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? इफ ही ऑलरेडी रीड द मैथमेटिक्स. मतलब पहले उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट आप देखो, इमेजिन करो. पहले उसने क्या किया है? आपको उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. हाँ, तो पहले उसने क्या किया? मैथमेटिक्स रेडी किया है, फिर उसके बाद वो स्टैटिस्टिक्स रेड कर रहा है. तो ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, हु फर्स्ट रेड द मैथमेटिक्स, ओके, एंड देन स्टैटिस्टिक्स. ओके, मतलब आपको स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेट करनी है जबकि उन्होंने ऑलरेडी मैथमेटिक्स रेडी किया. ऐसे स्टूडेंट हमें चाहिए. Okay, so probability that he read statistic if it is known that he already read the mathematics. मतलब mathematics complete उसने किया है. Okay, now find the probability that he read the statistics. He already read the mathematics. Now find the probability that he read the statistics. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है वो तो समझ में आ रहा है. आप इमेजिन करो ऐसे. ओके, अभी मैंने मैथमेटिक्स रीड किया. ओके, नाउ मैं स्टैटिस्टिक्स रीड कर रहा हूँ और आपको क्या कैलकुलेट करना है? ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जो आप वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस स्टूडेंट्स, ओके, हु आर रीडिंग नाउ स्टैटिस्टिक्स इफ इट इज नोन दैट ही ऑलरेडी रेड द मैथमेटिक्स. ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, ओके, student that he read statistics if it is known that he already read the mathematics. जो complete हो गया इवेंट उसको आप by A से लिखते हो, by that event. So probability of statistic by mathematics. Is this notation clear now? तो आप यहाँ पे statistics की probability कैलकुलेट कर रहे हो, but provided, उसमें कंडीशन है, provided that student already read the mathematics. तो obviously ये इससे मैच करेगा ही नहीं ना, ये independent probability है. This is the independent probability of reading the statistics. Okay, this is the probability of statistic when that student already read the mathematics. Are you getting the difference now? Yes. हाँ, so it is equal to, इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्टली. इसका फॉर्मूला क्या है? उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और जो इवेंट कंप्लीट हो गया उसके प्रोबेबिलिटी नीचे आनी चाहिए. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
which is already completed. So intersection is already given 0.15. Okay, mathematics की probability भी given है 0.25. So this is your final answer. Is this clear now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next में two events, probability of A is given, probability of B is given. आपको यूनियन की कैलकुलेट करनी है, सॉरी यूनियन की भी गिवन है और आपको A बाय B की कैलकुलेट करनी है. तो फॉर्मूला आपको पता ही है, A इंटरसेक्शन B अपॉन B. आपको फॉर्मूला मेरे कैसे याद रखना है वो भी बोला, जो कंप्लीट हो गया वो नीचे आता है, इतना बस याद रखो. एंड नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस probability of B minus probability of A union B. Just put all the values here. So you will get the answer as 1 by 4. Okay, so it's a simple formula based question. Is this clear now? Yes. Okay. Yes, sir. Next क्या है? A can hit the target 3 out of 5 times. Okay. So probability that A hit the target is 3 by 5. है ना? जो गिवन है वहां से मैंने लिखा है. Next that B can hit the target 1 out of 3 times. So probability that B will hit the target is 1 by 3. है ना? जो गिवन है वहां से मैंने लिखा है क्योंकि probability गिवन है आपको. क्वेश्चन क्या है? The probability that no one can hit the target. No one can hit the target. तो आपको पहले इमेजिन करना, नो वन कैन हिट द टारगेट मींस व्हाट? ए को भी हिट नहीं करना है एंड बी को भी हिट नहीं करना है. सो हाउ यू राइट मैथमेटिकली दैट नॉट हिट बाय ए एंड नॉट हिट बाय बी? कैसे लिखोगे आप मैथमेटिकली? नॉट हिट बाय A complement intersection B complement. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डन. तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. बोथ आर इंडिपेंडेंट, मतलब नॉट हिट बाय ए एंड नॉट हिट बाय बी, दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट. तो इंटरसेक्शन जाएगा प्रोडक्ट में. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. ए की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी? 1 माइनस दैट नंबर. सिमिलरली 1 माइनस दैट नंबर बी के लिए भी. सो योर फाइनल आंसर इज 4 अपॉन 50. क्लियर? यस? नहीं समझ में तो आप क्लियरली ना बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं अलग पेज पे. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे तो ये अभी कॉम्प्लीमेंट का देयर इज वन मोर वर्जन, वन मोर नोटेशन हियर. आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट और आप ऐसे भी लिख सकते हो. मैं जनरली यही नोटेशन फॉलो करो कॉम्प्लीमेंट का, सी, क्योंकि वो जल्दी समझ में आता है. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. Okay, now so A complement intersection B complement, both event are independent. उन्होंने दे दिया क्वेश्चन में. तो इंटरसेक्शन आपका जाएगा प्रोडक्ट में. A की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी? 1 माइनस दैट नंबर. B की गिवन है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी? 1 माइनस दैट नंबर. सो योर फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 3. ठीक है. नेक्स्ट यूनियन की कैलकुलेट करनी है. A की गिवन है, B की गिवन है. अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है. इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन की क्या आएगी? बोलो. इंडिपेंडेंट, हाँ, 0. इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की क्या आएगी? अभी तो कितने बार ये रिजल्ट मैंने यूज किया है. इंडिपेंडेंट, Multiplication. इंडिपेंडेंट, हाँ, इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोथ आर डिफरेंट. डोंट कंफ्यूज विद दिस. ओके. इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्ट provided these two events are independent. ये पता है ना आपको? अभी कितने बार हमने रिपीट किया ये पार्ट, है ना? यहाँ पे हमने वही किया था ना. If both events are independent, then intersection is replaced by product. तो वही रिजल्ट यहाँ पे भी यूज करना है. So both events are independent, then their intersection is replaced by product. ठीक है, इतना ही चेंज है. So it is 1 by 2 plus 1 by 3 minus their product. Okay, so final answer is 2 by 3. Yes? Any doubt in this last question? No, sir. Okay. No, sir. No, sir. ठीक है. तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी इस पीडीएफ में ले लिए ना, डायरेक्टली सॉल्व क्वेश्चन ही लिए मैंने सारे. का आपको उतने ही प्रिपेयर करने. इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं. ज़्यादा वेटेज नहीं रखा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 3 टॉपिक्स, बट स्टिल यू नीड टू प्रिपेयर दिस. जितने भी क्वेश्चन है अराउंड
12 to 13 क्वेश्चंस रहेंगे, बट दैट यू नीड टू प्रिपेयर. ठीक है, उतने ही एक्सपेरिमेंट रहेंगे. आउटसाइड दिस आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होगा. ओके, क्योंकि आई नो दिस टॉपिक इज नॉट दैट मच ट्रिवियल. एज जैसे मैं एक्सपेरिमेंट चेंज करता हूँ, थॉट प्रोसेस टोटली चेंज हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए it's better to stick with these examples. Maybe I will change the values, maybe I will change the probability, but logic is similar to this only. Okay, so this is your fourth unit, okay, where you need to prepare the binomial distribution, specifically its MCQs, Poisson distribution, MCQs, normal distribution, MCQs. ये सबसे easy topic है normal, and then the pure probability part. Okay, and I have already shared actually what is the problem. Last 2-3 सेशन की जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसमें शायद आई थिंक जो मेरा रिकॉर्डर था उसमें माइक्रोफोन ही ऑफ था. सो आई हैव दैट रिकॉर्डिंग, बट उसमें वॉइस ही नहीं है. तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर की कुछ रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे शेयर की है. एट देन वो सिमिलर ही है, यू कैन इमीडिएटली कनेक्ट टू दोज रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, बट सारे टॉपिक्स के अभी अवेलेबल है. ओके, so please check. And what I will do, इसके आगे मैं क्या करूँगा, एक कंबाइन इसमें सारे एक ही मतलब एक ही लिंक में आई विल अपलोड दैट होल यूनिट, रिकॉर्डिंग ऑफ दैट होल यूनिट. तो आपको मतलब अगर आप यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे यूनिट 4 अगर मैं करता हूँ तो उसमें सारे रिकॉर्डिंग में एक ही स्लॉट में रख देता हूँ. सो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना प्रिपेयर करना है. ठीक है, आई थिंक दैट विल बी इजी फॉर यू इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस अप्रोच. अभी नेक्स्ट यूनिट का भी मैं क्या करूंगा, एक यूनिट यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा, यूनिट 5. ओके, यूनिट 5, और इसमें मैं बस रिकॉर्डिंग ऐड करते जाऊंगा एडिट करके. इज इट ओके? चलेगा इससे? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज डे वाइज जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है टू फाइंड दैट पर्टिकुलर लिंक, मतलब कहाँ पे कौन सा टॉपिक है. सो इसलिए ये मैं अभी चेंज ही कर देता हूँ, अप्रोच चेंज कर देता हूँ. सो दैट विल बी इजी फॉर यू. बस एक ही इसमें आपको सारे उसके वीडियोस दिखाई देंगे, एंड देन यू कैन रेफर एनी टॉपिक फ्रॉम दोस. ओके, सो Sir, हाँ, यस जानवी बोल. sir, please share the PPT of Unit 4. इट इज शेयर्ड ना, इट इज ऑलरेडी शेयर्ड. और नहीं, Oh, sir. oh sorry. Okay, चेक कर ही देता हूँ इमीडिएटली. हार्डली टेक 2 minutes. यूनिट 4. आप जो व्हाट्सअप करके रखो ऐसे केसेस में, क्योंकि ये टॉपिक अभी 4 ब्रांचेस में चल रहा है, तो मुझे भी पता नहीं होता कि कभी कभी कहाँ पे अपलोड किया है मैंने. सो मे बी वो कंफ्यूजन मेरे दिमाग में रहता है हमेशा. Yes, that PDF is there with solved MCQ, so I will upload it directly. Yes. Okay. So this is all about your 4th unit. Okay, and that material is also shared. Please start preparing. You have very less time to prepare. I'm really sorry for the delay. Okay, but अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखे, आप कंसेप्ट क्लियर है, तो ये सबसे इजी यूनिट है. फिर से सुनो, अगर आपको आई में स्कोर करना है तो ये और नेक्स्ट यूनिट दोनों भी इजी है. ओके, अभी नेक्स्ट यूनिट वेक्टर है जो आपको इजी जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. इसके आगे सिलेबस उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट लेंदी है, कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम जाता है, उतना ही है. ओके, सो मैं अभी ये रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप करता हूँ.